नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। Before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Combat, Compete, Crack and Conquer, India's biggest free scholarship test for UPSC aspirant is here, and you have the chance to win from a scholarship pool of 4 crore rupees. 60 questions in 60 minutes, detailed analysis by India's best educators. Participate in every combat and win scholarship. To unlock the next UPSC combat on 14th of March, 11 a.m. Apply the code ARPITA10. Enroll for free, ARPITA10. The link is in the description box, and you just have to click on that link, install the app, choose the course UPSC CSE, and when prompted, just apply the code ARPITA10, ARPITA10. Now, in today's lecture, we'll be talking about the economic and social development in India, especially the Millennium Developed, also known as the MDGs or Millennium Development Goals. हालांकि 2015 and onwards SDGs Sustainable Development Goals have been mostly in use, लेकिन आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो भी पता होना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं एंड हैज़ इंडिया अचीव्ड देम एंड व्हाट वाज अ पॉइंट. So in 2189 nations made a promise to free people from extreme poverty and multiple deprivations. As you all know, जब हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है एंड द कोल्ड वॉर ends in the 1990s 1992, we see that there were many countries who were left out, जिन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो करा, सोशलिज्म को फॉलो करा, लेकिन कोल्ड वॉर के एंड होते ही वो कंट्रीज जो थी उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, ग्रोथ और डेवलपमेंट दूर दूर तक नहीं दिखी. इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी नेशंस थी जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और बहुत सारे मल्टीपल डेप्रिवेशंस का शिकार हो रही थी. एंड सो इन 2000s 189 नेशंस मेड दिस प्रॉमिस एंड दे केम अप विद दिस न्यू आइडिया ऑफ द MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. और उनके टारगेट था कि वो आने वाले ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड में, यानी कि 15 साल में 2015 तक इसको अचीव करें. And in September 2010, the world recommitted itself to accelerate progress towards these goals. तो ये जो गोल्स हैं आपके MDGs, ये ऐसा नहीं है कि एक बार बनाए तो उसके बाद इन्हें कभी भी चेंज नहीं करा गया या इनको कभी भी अमेंड नहीं करा गया. इनको थोड़ा थोड़ा इनके अंदर करेक्शंस लाई गई, विच वॉज मच मोर प्रेवलेंट इन दी September 2010. और इन MDGs के अंदर आते हैं 8 गोल्स, एंड दीज 8 गोल्स एड्रेस दी myriad डेवलपमेंट इशूज़. There are myriad development issues in many of the nations like poverty, like human development. तो ये हमारे कुछ MDGs हैं. ये टोटल 8 हैं, तो आपको you really need to remember all of this. It is very important from exam perspective. Like eradicating extreme poverty and hunger is the first. Then achieve universal primary education. The third one is the promoting gender equality and empowerment of women. Then reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and tuberculosis, ensure environment sustainability, and develop global partnership for development. So the 18 targets were set as quantitative benchmarks for attaining the goals. The United Nations Development Group, the UNDG, in 2003 provided a framework of 53 indicators, 48 basic plus 5 alternative, which are categorized according to targets for measuring the progress towards individual targets. देखिए ये सब डिवाइडेड है, 8 डोमेन्स में ये बटे हुए हैं, 8 गोल्स में बटे हुए हैं ये, और उसके अंदर इंडिकेटर्स हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड है एज 48 प्लस 5. 48 बेसिक हैं और 5 अल्टरनेटिव हैं. एंड अ रिवाइज्ड इंडिकेटर फ्रेमवर्क ड्रॉन अप बाय द इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको कि हम बोलते हैं IAEG ऑन MDGs, केम इनटू इफेक्ट इन 2008. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्ली 2000 में इसका एक प्रपोजल आया और 2015 तक इसको ख़त्म करने की बात भी कही गई, लेकिन बीच बीच में इसके अंदर इंडिकेटर्स और सब डिविजन्स लाए गए. दिस फ्रेमवर्क हैड 8 गोल्स, 21 टारगेट्स एंड 60 इंडिकेटर्स. सो ये जो फैक्चुअल डिटेल है, 8 गोल्स, 21 टारगेट्स एंड 60 इंडिकेटर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट. प्लस ऑल्सो रिमेंबर दी 8 गोल्स जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया था उसको वी हैव नॉट इंडोर्स दैट। हमने जो हमारे जो मेजर 8 गोल्स थे उन्हीं को इंडोर्स करा, नॉट द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे जितने भी हमारे पास गोल्स हैं उनकी इंडिविजुअली, जैसे कि फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल एंड अप टू एट्थ गोल, प्लस इंडिया की पोजीशन उसमें क्या थी और टारगेट क्या थे। तो पहला जो गोल था एमडीजी का, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1, वाज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अब इसके सब टारगेट्स थे दो। टारगेट नंबर 1 वाज to halve between the 1990 and 2015 the proportion of people whose income is less than $1 a day. So you can understand that it is very much specific in the डॉलर डोमिनेशन कंसेप्ट, कि जो डॉलर का जो डोमिनेशन होता है, जो हम डॉलर को यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और इवन इन द टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द पॉवर्टी लेवल्स, तो उसको $1 पर डे पे सेट किया गया। The target to halve between 1990 and 2015 the proportion of people who suffer from hunger. This was specially to help the nations like the South African countries. Now, India की इसमें क्या progress थी? The All India Poverty Headcount Ratio, the poverty headcount ratio that we have discussed earlier in the earlier lectures of the poverty estimate was 47.8 in 1990, around 50% आप समझ सकते हैं इसको, and in order to meet the target the PHCR level has to be 23.9 by 2015। 2015 तक आते आते हमारा 1990s में जो हेडकाउंट रेशियो था, पोवर्टी हेडकाउंट रेशियो था, वो ऑलमोस्ट अराउंड 48-50% के करीब था। लेकिन अगर हमें 2015 में इसको अचीव करना था तो हमारे पास 2015 में 24% तक ही होना चाहिए था, यानी कि डिक्लाइन दिखना था। इन 2011 एंड 12 द PHCR एट ऑल इंडिया लेवल इज़ 21, अराउंड 21 आप मान सकते हैं, 22 के करीब। दैट मीन्स दैट वी हैव अचीव्ड द टारगेट वेल अहेड ऑफ टाइम। सो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो को अचीव करना इट इज़ अ वेरी बिग फीट, केवल 15 साल के अंदर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। Now, during 2004 to 5, 2011 and 12, the poverty gap ratio reduced both in rural and urban areas. While the rural PGR declined from 9.6 in 2004 and 5 to 5.05 in 2011 to 12, in the urban areas, it declined from 6.08 to 2.7 during the same period. तो हमको ये इसमें डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, चाहे वो पोवर्टी गैप रेशियो ही क्यों ना हो। Plus, the National Family Health Survey shows that the proportion of underweight children below 3 years declined from 43 to 40%. Now, this is very important fact. Please do remember this. At this rate of decline, the proportion of underweight children below 3 years is expected to reduce to 33% by 2005, which indicates India is falling short of the target. तो जो हमारे पास टारगेट 1 और टारगेट 2 है, though we have almost been able to achieve with flying colors the target 1 which was related to the poverty issues, but when it comes to the hunger part, the target 2 of the MDG 1, we are falling short. अब हम बात करते हैं सेकंड गोल की, जो कि था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द टारगेट वाज टू इंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर, बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, will be able to complete a full course of primary education. बॉयज़ एंड गर्ल्स को इसलिए लाया गया कि जेंडर इक्वालिटी आए, प्लस प्राइमरी एजुकेशन सबसे बेसिक लेवल रखा गया। नो व्हाट वाज द इंडियाज प्रोग्रेस? अब जो एक रेट होता है नेट इनरोलमेंट रेट, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द कंसेप्ट्स ऑफ अटेंडेंस, प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग इन प्राइमरी एजुकेशन from the age between 6 to 10 was estimated in India at around 84.5% in 2005 to 6, and it increased to 88% by 2013 and 14। तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज कि इंडिया ने बहुत अच्छी मेजर प्रोग्रेस करी, बिकॉज 84.5 से हमारा जो प्रोग्रेस है वो 88 तक गई। Now the youth literacy rate has increased from 61.9% to 86.14% during the period of 1991 to 2011. As well as at national level, the male and female youth literacy rate is also at 94.81 and 92.47.
तो हमें दोनों ही चीज़ में, चाहे वो MDG का जो सेकंड गोल है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसमें हमें दोनों ही तरफ से, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो एडल्ट लिटरेसी रेट हो, या यूथ लिटरेसी रेट भी जिसको बोलते हैं, वी हैव अचीव्ड इट विथ फ्लाइंग कलर्स. Now the third goal is promote gender equality and empowering women. इसके लिए जो टारगेट सेट किया गया था, इट वाज टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, प्रेफरेबली बाय 2005 एंड इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन नो लेटर देन 2015. इसमें इंडिया की प्रोग्रेस ये है दैट एट प्रेजेंट इन प्राइमरी एजुकेशन द एनरोलमेंट इज फेवरेबल टू फीमेल्स एज जेंडर पैरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 1.03 इन 2013 to 14. देखिए, जेंडर पैरिटी इंडेक्स अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं दैट इट डिफाइंस कि जो डिस्पैरिटी है जेंडर को लेके, मेल और फीमेल को लेके, वो कितनी कम है. We'll be talking about these indexes like gender parity index and gross enrollment ratio in the coming lectures. But now आप समझ सकते हैं कि it is the index that tells us about the disparity between the male and female. In secondary education also, gender parity has achieved GPI of GER is 1 in 2013 and 14, and in tertiary level of education the GPI of GER is 0.89. GER और GPI के जो ratios हैं, you can quote it in the mains exam, but this one as in the census वाला जो डेटा है, इसको आप ज़्यादा कोट करेंगे, you will be able to remember it easily and it will be very much helpful to you also. That as per the census of 2011, the ratio of female youth literacy rate to male youth literacy rate is 0.91 at all India level, and has also been likely to reach the level of 1 by 2015. So this was one of the major status. Now the fourth goal was to reduce child mortality. देखिए, किसी भी कंट्री में जितने भी स्पेशली जिन कंट्रीज़ की जो फंडिंग थी, हायर इन्वेस्टमेंट्स थे, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज से आते थे. आफ्टर द कोल्ड वॉर वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुए. उसकी वजह से ये हुआ कि जो उनके 5 ईयर प्लान्स थे या जो उनके इकोनॉमिक प्लान्स थे, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जैसी जो कंसेप्ट थे वो अब प्रेवेलेंट नहीं रहे थे इतने, क्योंकि जब USSR ही टूट जाएगा तो फिर फंडिंग आएगी कहाँ से. एंड बिकॉज ऑफ दिस the fourth goal was to reduce the child mortality in the Millennium Development Goals, reduced by 2/3 between 1990 and 2015 the under 5 mortality rate. इंडिया की प्रोग्रेस ये थी. द कवरेज इवेल्यूशन सर्वे, एक सर्वे होता है, द कवरेज इवेल्यूशन सर्वे एस्टिमेट्स द proportion of 1 year old children immunized against measles at 74% in 2009, although there is substantial improvement in the coverage, which was 42% in 1992 to 1993. Yet at this rate of improvement, India was likely to achieve about 89% coverage by 2015, and thus India is likely to fall short of universal coverage. तो ऐसा नहीं है कि हम सारे गोल्स में आगे हैं. MDG का जो हमारा फोर्थ गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी में, उसमें हम इतने अच्छे से हमने जो प्रॉपरली उसे कवर नहीं किया है. नाउ द फिफ्थ गोल, दैट वाज इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ. The target was to reduce by 3 quarters between 1990 and 2015 the maternal mortality rate. The maternal mortality rate is a key performance indicator KPI, जिसको हम KPI भी बोलते हैं कई बार शॉर्ट फॉर्म में, for efforts to improve the health and safety of mothers before, during and after childbirth per country worldwide. Often referred to as MMR, it is the annual number of female deaths per 100k live births from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management, excluding the accidental और incidental cause. देखिए, इसमें accidental incidental cause को हम नहीं लेते. Now we have the sixth goal, which is known as the combating HIV, AIDS and malaria and other diseases. इन other diseases में tuberculosis भी आता है, क्योंकि जो tropical nations हैं जितनी भी tropical belt में, क्योंकि जो बीमारी हैं, जो डिजीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि ऊपर है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ है, जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन नहीं है. सो द टारगेट वन, इट वाज आल्सो सब डिवाइडेड इन 2 टारगेट्स जस्ट लाइक द गोल 1. टारगेट 1 वाज
have halted by 2015 and began to reverse the spread of HIV/AIDS. HIV/AIDS के spread को कम करना था. And the second target was have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases. यानी कि मलेरिया और HIV/AIDS के ऊपर this whole goal was concentrated. Now what was the India's progress? The prevalence of HIV among pregnant women aged 15 to 24 is showing a declining trend. 8 from 0.89% in 2015 to 0.32 in 2012 and 13. यानी कि इसको हमने अचीव करा है. According to Behavioral Surveillance Survey BSS, the national estimate for proportion of population aged 15 to 24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS in 2006 was 32.9%, reporting betterment from 2001. देखिए HIV/AIDS का डिक्लाइन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि हुआ, प्लस लोगों तक उसकी नॉलेज पहुंचना, उसकी नॉलेज का डिसिपेशन होना कि HIV/AIDS है क्या, और इस तरीके की जो डिजीज़ हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इंक्रीज इन इंडिया. प्लस मलेरिया को अगर हम लेके बात करें, द एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस API रेट मलेरिया हैज़ कंसिस्टेंटली कम डाउन फ्रॉम 2012. इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो एंटी डेंगू, एंटी मलेरियल या डॉट्स प्रोग्राम जिसमें आप एम्बेसडर को देखते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को, तो ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लाए गए जिसकी वजह से ये जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट रेट है, वेदर इट वाज फॉर मलेरिया, इट ऑल्सो केम डाउन फ्रॉम 2.12 per thousand in 2001 to 0.72 per thousand in 2013, but slightly increased in the 2014, but confirmed deaths due to malaria in 2013 was 440, and in 2014 578 malaria deaths have been registered. तो कह सकते हैं कि अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नो व्हाट इज द सेवंथ गोल? द सेवंथ गोल इज इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. इसके भी दो सब टारगेट्स है. टारगेट 1 was to integrate the principle of sustainable development into country policies and programs and reverse the loss of environmental resources. And the second target was half by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. तो MDG 7 का जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ जो गोल है, इसके दो सब टारगेट्स थे. पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन वाज द सेफ क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर. तो इंडिया की इसमें कहाँ प्रोग्रेस का जो रेट है वो कैसा है? ड्यूरिंग 2011 to 13 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5871 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर. तो फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ा, दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटल हज़ार्ड जो हैं वो कम हो रहे हैं और फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, विच इज़ अ ग्रेट साइन. एंड एज पर सेंसस ऑफ 2011 67.3% हाउस होल्ड्स आर यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स के अंदर जैसे फायरवुड आ सकता है, काउ डंग केक आ सकता है, कोक आ सकता है, क्रॉप रेजिड्यू आ सकता है, फॉर कुकिंग अगेंस्ट 74.3 in 2001. So that reveals that in rural areas 86.5% households and in urban areas 26.1 households are using solid fuels for cooking. During 2012 at all India level 87.8, around almost 88% household had access to improved sources of drinking water. So this also shows that कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है इट इम्प्रूव्ड. Now the last target, the MDG 8, was to develop a global partnership for development. ये पार्टनरशिप जो है, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो देश हैं वो डेवलपिंग नेशंस में इन्वेस्टमेंट मॉडल लाते हैं, चाहे वो उनकी न्यू लिबरल पॉलिसी का एक हिस्सा हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा हो. The target was in cooperation with the private sector make available the benefits of new technologies, especially information and communication. इसी टारगेट के तहत आप देखेंगे many of the companies in India, just like Airtel and Reliance, they made their certain investment in the many of the southern African nations. इसलिए आप देखेंगे कि एयरटेल का जो नेटवर्क है it is not just restricted to the Indian subcontinent but also to countries like the southern African nations. You can also find one of the headquarters in the Cape Town region as well. So यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की बात इसमें करी गई. अब इसमें इंडिया की प्रोग्रेस क्या है? The overall tele density in the country has shown tremendous progress and is at 76%.
देखिए जो डेटा है 76% का, इट वॉज टिल 2014। ये 76% से और ज़्यादा जंप इसने करा है आफ्टर दी जियो मूवमेंट इन दी 2016। इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच अराउंड 82%। सो आप देख सकते हैं कि टेली डेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ी है कंट्री में। अब कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता कि नेटवर्क इशू आते हैं, दो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी देखी जाती है रूरल एरियाज़ में, लेकिन अर्बन एरिया में टेली डेंसिटी बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हुई है। द इंटरनेट सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन accessing internet through wireline and wireless connection has increased from 16.15 in June 2013 to 20.83 in June 2014। द थिंग इज़ कि जो डेटा है वो इसलिए 2014-13 का है बिकॉज SDGs आ गए थे 2015 के बाद, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको फिर इतना यूज़ नहीं किया गया, उनको एक न्यू मॉडल के रूप में SDGs में कन्वर्ट किया गया, और उसको नाउ वी आर ट्राइंग टू फॉलो दी SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंस्टेड ऑफ दी MDGs। लेकिन MDGs के जो 8 गोल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, एंड प्लस ऑल द डेटा दैट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल, दैट व्हाट मार्क्ड द इंडियाज प्रोग्रेस and what were the area of improvement. So this marks the end of the lecture. Thank you.